everyone, welcome back to my channel. The next topic we are going to discuss about the pass arrays to a function in C. In the last video we had discussion about that array, one dimensional array and two dimensional array. What is that array? And you are able to write the program addition of two matrix, how to display the matrix. All these concept we have covered in the last session. And this session we are going to cover about the C arrays and function. Then we will moving into the pointers. So I will revise little bit. So basically I have written in this particular slides why we use array and what is the characteristic of an array. You can type and you can learn it, because this question is definitely will be asking in your not interview, will be in your exam if you are a BC or BTech student, or you are doing some MC as well. Okay, so I will discuss now about that array using function. I mean, you have to pass the array in function, and you are displaying that your console output using that. Okay, so basically in C programming you can pass an entire array to functions. Okay, so we will see like basically how you will pass that one. Basically pass individual array elements, multiple भी और individual भी आप कर सकते हैं. पहले passing array elements to a function is just similar like you are passing a आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल इन अ नॉर्मल सिंपल फंक्शन. जैसे हम फंक्शन में वेरिएबल पास कराते हैं वैसे ही हम एरे पास करा सकते हैं. तो हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम देखने वाले हैं. वो प्रोग्राम हमने यहाँ पे ओपन करेंगे और मैं प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि प्रैक्टिकल आपको आना चाहिए. थ्योरेटिकल सेशन के लिए आपको बुक्स अवेलेबल है, नोट्स है, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको यहाँ पे नोट्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं. तो हमें यहाँ पे फंक्शन एरे करना है. मतलब हम फंक्शन एरे मतलब जो एरे को हमें फंक्शन में पास कराना है. ये छोटा सा हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं. सो दैट यू हैव टू बी सीन प्रॉपरली. यहाँ पे आप अच्छे से इस प्रोग्राम को देखिए, आपको समझ में आएगा और आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लिख सकते हैं. बिकॉज डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. अभी तक जो आपने पढ़ा है वो बेस है. उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पॉइंटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर होता है. आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में भी और यहाँ पे सी लैंग्वेज में भी ये काम आने वाला है. बहुत सारी फाइलें ओपन है, कोड बहुत सारे हमने कवर किए हैं. तो ये इसलिए मुझे उस फोल्डर के अंदर फाइल ओपन करते हैं, previous file show करते रहते हैं. Okay, so here I'm going to write one of the program, and I will create one array, and that array I will pass in function. Okay, so how I will pass the array in a function, that is the program which I'm going to discuss it now. So यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना फाइल लिखेंगे same include stdio.h. अब मैंने आपको बताया है कि ये वाला भी लाइन आपको लिखना पड़ेगा conio.h का, बिकॉज ये कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है जिसके अंदर आपके गेट ch एंड clr scr फंक्शन आते हैं. अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट यूज दोज टू फंक्शन विच इज हैविंग इन दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल, दैट इज conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल. And the stdio.h is a header file which is having the printf and scanf function. These all the concept you can check in my C programming series. This was the first video I had discussion about. I have explained you about the hash, preprocessor, include, stdio.h, conio.h and other header files which is mandatory to be used in your C program before writing anything. Okay, so let's move to the concept. So here I will be creating one variable, so not a variable, one function which is name is display. So यहाँ पे मैंने एक नंबर लिया है, एक वेरिएबल का नेम लिया है एज, दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीजर एज2. ये दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे क्रिएट करे हैं और पास कराए हैं एज आर्ग्यूमेंट. किसके अंदर? फंक्शन में. इनको आप आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, पैरामीटर ही बोलते हैं जो आप यहाँ पे पास कराते हैं. और मैंने इस फंक्शन के अंदर ये पास कराने के बाद में यहाँ पे इनको प्रिंट करा दिया है, जो कि अभी कंसोल विंडो पे प्रिंट होगा. अभी मैंने आपको बताया कि आप फंक्शन अगर ऊपर लिखते हैं तो आपको इसका प्रोटोटाइप देना होता है, नहीं तो नीचे डायरेक्टली इसको स्कैन कर नॉट स्कैन इसको डिस्प्ले करा सकते हैं. हम इस फंक्शन को मेन मेथड में कॉल कराने वाले हैं, बट इससे पहले हम इसकी डेफिनेशन हमने यहीं पे लिख दिया है. तो दिस इज ऑल्सो द वे यू कैन राइट. तो एज2 दो वेरिएबल आपने क्रिएट किए हैं और मैंने दोनों ही वेरिएबल को इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे प्रिंट करा दिया है. अभी हम बात करते हैं मेन मेथड की. मैंने इंटीजर मेन यूज करा है, वॉइड मेन यूज करेंगे तो बेटर है. रिटर्न 0 लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ने की. रिटर्न इज अ कमांड टू एग्जीक्यूट योर मेन मेथड. गुड. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, मैंने एक एरे बनाया है जिसका नेम मैंने यहाँ पे एज एरे दिया है. लेकिन एरे बनाने के लिए आपको पता है डिक्लेयर कैसे करते हैं, पैरेंथेसिस आपको देने पड़ते हैं. ये
जो ब्रेसेस है आपने वो ब्रेसेस दे दिया है यहाँ पे, आगे हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। पैरेंथेसिस तो ये होते हैं जो फंक्शन में लिखे हैं, इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ये ब्रेसेस होते हैं और ये कर्ली ब्रेसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है जिसमें मैंने यहाँ पे 2 8 4 एंड द वैल्यू 12, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं, मैंने जस्ट फॉर नाउ ये वैल्यू यहाँ पे लिखा है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो फंक्शन जो आपने लिखा है डिस्प्ले फंक्शन, मैंने यहाँ पे करा है कि इस फंक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे एरे पास कराना है। तो दिस इज द वे यू कैन पास योर एरे। सो मैंने पास करा यहाँ पे एरे 1, तो ठीक है, बिकॉज एज 1 में मेरा जो एरे 1 रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। और मैंने एक और यहाँ पे इस वाले यहाँ पे पास करा एज एन आर्ग्यूमेंट, क्योंकि दूसरा आर्ग्यूमेंट आप पास करा रहे हैं, उसमें मैंने यहाँ पे 2 पास करा दिया है। और इसको यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ये आप यहाँ पे गेट सी एस लिख दीजिए, CLR लिख दीजिए यहाँ पे। और आपको डेफिनेटली पता है यहाँ पे आप रिटर्न 0 लिखेंगे ही, क्योंकि आपका जो ये फंक्शन है वो इंटीजर मेन है। सो अब आप इसको रन कराएंगे तो व्हाट विल बी द आउटपुट, आपने लिखा एज एरे 1 एंड एज एरे 2, व्हाट विल बी द आउटपुट। आपको मैंने एक चीज बताई है जो कि आपको पता होगा कि आपका आउटपुट कैसे, जो एरे इंडेक्स होता है इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, एज एरे 1 मतलब 0 1, 1 पे एलिमेंट क्या है आपका 8 और 2 पे एलिमेंट क्या है 4। तो आउटपुट में क्या प्रिंट आने वाला है आपका, प्रिंट एफ में यहाँ पे एज 1 8 हो जाएगा और एज एरे मतलब दूसरा नंबर पे जो एलिमेंट है वो आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे क्या है आपका 4। लेकिन अगर मैं इसको एज 0 लिखूं तो मेरा क्या बन जाएगा 2। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो एरे है इसकी इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 होती है। ओके, मैंने कंट्रोल S किया, कंट्रोल F9 आप इसको करा दीजिए। यहाँ पे आप रन कराएंगे तो आउटपुट में आपका क्या आ गया 8 4। सो दिस इज द वे यू कैन print your code, you can pass your array in the function. Okay, so you can note it down. Here we have passed array parameter to the display function, and the same way we pass variable to a function that I have shown you here. So this is the way you can pass your array in a function. So सेकेंड हम बात करते हैं, अभी जो हमने बात करा है वो इंडिविजुअल एरे एलिमेंट, पास इंडिविजुअल एरे एलिमेंट इन अ फंक्शन। अभी हम दूसरे बात करते हैं पास एरेज टू द फंक्शन। ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, आपने जो पास कर इंडिविजुअल एरे है। इंडिविजुअल एरे मतलब एक एलिमेंट ले लिया आपने एरे का, एरे 1 एरे 2। अभी हम दूसरा जो पास करेंगे कंप्लीट एरे पास कराएंगे, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर। फंक्शन में आपको पूरा एरे पास कराना है दूसरे एग्जाम्पल में। तो इसमें हमने अभी कवर किया है आपका क्या, पास इंडिविजुअल एरे एलिमेंट। ये वाला प्रोग्राम है आपका, इंडिविजुअल एरे एलिमेंट को कैसे पास कराते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि पूरे एरे फंक्शन को कैसे पास कराते हैं, पूरे एरे को फंक्शन में हम कैसे पास कराते हैं। तो सेम है, हम एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पे साथ साथ कंपाइल कराने पे बिलीव रखती हूँ। आपको बनाया प्रोग्राम एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम तो कम जाएगा, लेकिन समटाइम्स क्या होता है ना, एक एक चीज़ें हम जब करते हैं तो हमें स्टेप्स के बारे में पता चलता रहता है, तो बहुत इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। दिस इज ओनली द यूज, मैं यहाँ पे आपको कंपेल करके दिखाती कोड को। हैश इंक्लूड include, ओके फाइन। सो यहाँ पे आप लिखेंगे studio.h, बोलने से आपका रिवाइज भी हो जाता है। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे, मैंने एक यहाँ पे क्या बनाया है, फंक्शन बना रहे हैं हम। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ एरेज एलिमेंट बाय यूजिंग फंक्शन और बाय पासिंग टू अ फंक्शन और बाय पासिंग द पैरामीटर ऑफ टू द फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, मुझे सम करना है, और सम करने के लिए मेरा पॉइंट वाला वैल्यू भी हो सकती है, मतलब डेसिमल वैल्यू भी अगर आपको लेनी है तो फ्लोट ले लीजिए, और अगर आपको डेसिमल वैल्यू नहीं लेनी है ना तो आप इंटीजर ले लीजिए। मतलब अभी कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है। लेकिन जब आप स्कैन कराएंगे तो आप एफ यूज करेंगे फ्लोट में, और इंटीजर लेंगे तो आपको %d यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कैलकुलेट, ये मेरा एक मैंने यहाँ पे मेथड बना लिया है, उसका प्रोटोटाइप दिया, और मैंने एक फ्लोट टाइप का यहाँ पे एरे क्रिएट किया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस फंक्शन में मैंने एज अ पैरामीटर एक एरे पास करा है। वो जो ब्रेस मैंने यहाँ पे लगाए ना, ब्रेसेस, इससे पता चलता है कि ये एक इंडेक्स है जो आपने यहाँ पे देनी है, इसकी पर्टिकुलर लेंथ। आप जब फंक्शन को कॉल कराएंगे वहां पे कुछ ना कुछ आप एज एरन पास कराने वाले हैं। ओके, अभी हम बात करते हैं मेन मेथड की। हम मेन मेथड पे आ जाते हैं। इंटीजर मेन मैंने यहाँ पे लिखा है, और आपने लास्ट प्रोग्राम में देखा है कि मैंने मेन मेथड जो है नीचे कराया था, और पहले हमने क्या कराया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी इस वाले प्रोग्राम में जो मेरा मेन मेथड है वो मैंने कहाँ पे लिखा है, नीचे। तो मैंने इसका प्रोटोटाइप नहीं दिया, डायरेक्टली फंक्शन लिख दिया, उसको नीचे कॉल करा। लेकिन अभी वाला जो प्रोग्राम हम लिख रहे हैं उस वाले प्रोग्राम में मैंने ऊपर प्रोटोटाइप दिया है, ये वाला प्रोटोटाइप दिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, मेन मेथड लिखा है। अगर हम मेन मेथड को नीचे लिखेंगे
वो जो फंक्शन बना रहे हैं उसके बाद तो आपको प्रोटोटाइप देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप पहले मेन फंक्शन लिखते हैं फिर बाद में प्रोटोटाइप लिखते हैं तो आपका उसमें क्या रहता है कि ये बोलता है कि डिफाइन नहीं है, इस तरह का एरर देता है, तो आपको इसलिए पहले डिफाइन करना पड़ता है उसको। ओके फाइन। सो हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी इंटीजर मेन पे आते हैं। इंटीजर मेन पे मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लोट, और मैंने इसका वैल्यू दिया है यहाँ पे रिजल्ट करके एक ले लिया है मैंने ऑलरेडी नंबर एक एरे क्रिएट किया हुआ है। एरे आपको क्रिएट करने हैं, आप अलग भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, हम अलग ही कर देते हैं क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक नम करके मैंने यहाँ पे एरे क्रिएट किया। आपको पता है कि एरे की हम वैल्यू पास कैसे कराते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फ्लोट लिया है तो हम पे डेसिमल वैल्यू पास करा देते हैं। देखो फ्लोट में ना दोनों तरह की वैल्यू आ जाती है, आपके डेसिमल वैल्यू भी आ जाती है और नॉन डेसिमल वैल्यू भी आ जाती है। तो मैंने 2.5 दे दिया है यहाँ पे, और ये कुछ भी आप दे दीजिए, मतलब जो भी आपका मन करता है वैल्यू को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू मैंने पास कराई है आपको भी वही वैल्यू पास करानी है। ओके ये मेरा एरे हो गया है। मैंने ये यहाँ पे इनपुट कराने वाले हैं तो कितना भी लंबा एरे दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक वेरिएबल लिया है रिजल्ट, और मैंने उसमें ना ये वाला फंक्शन कॉल करा दिया आपका कैलकुलेट। फंक्शन का नेम क्या, कैलकुलेट सम, और इसके अंदर मैंने क्या पास करा है, नंबर, जो भी आपका इसमें स्टोर हो जाएगा। ओके ये मैंने कॉल कराया है। अभी मुझे प्रिंट भी तो कराना है ना, प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ लिया मैंने, और यहाँ पे आपका परसेंटेज का यूज करने वाले हैं। आप मैसेज देना है तो आप रिजल्ट लिख लीजिए इस तरीके से। रिजल्ट इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा परसेंटेज 2 के 2 बिंदु तक, वो आपको 0.2 तक आपका दिखाएगा। डेसिमल के बाद जो 0 या 2 एलिमेंट रहेंगे, नंबर रहेंगे, वो पॉइंट के बाद 2 नंबर रहेंगे, इसलिए मैंने इसको दिया है। 3 देना है तो 3 लिख लीजिए वहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको रिजल्ट को प्रिंट करा दिया। ओके कूल। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, गेट सी एस लिखेंगे, और यहाँ पे आप CLRSCR दैट इज फॉर क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हैं, रिटर्न 0, बिकॉज आपका जो ये मेन मेथड है वो रिटर्नेबल है। ओके अभी हम बात करते हैं फंक्शन की। जो मेरा लॉजिक है मैं वो यहाँ पे लिखने वाली हूँ। आप ये फंक्शन अगर ऊपर लिखेंगे तो वो प्रोटोटाइप ऊपर देने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मेरा ये फंक्शन का नेम मैंने यहाँ पे लिया था, और इस फंक्शन के नेम में आपने एक वेरिएबल लिया है, वो मैंने यहाँ पे पास करा दिया है फ्लोट टाइप का, जो मेरा एरे है। ठीक है हमें कुछ नहीं करना है, मुझे इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जस्ट ट्राइंग टू डू द सम। डेसिमल लिया तो 0.0 कर दीजिए, और यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, एक वेरिएबल यूज करना है I0, I लेस देन कितने आपके 0 1 2 3 4 5, मतलब लेस देन 6 करेंगे तो 5 तक आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू ले लिया है, और यहाँ पे मैंने इसको सॉरी I++ लूप के अंदर ये आगे है, कर्ली ब्रेसेस का साइन लगाएंगे, और आपका सम फॉर्मूला लिखेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस। कैसे आएगा सम प्लस, जो भी वेरिएबल ले रहे हैं इंडेक्स के बेस पे वो सम होता चला जाएगा, वहाँ पे प्रिंट करेगा, बाहर आ जाएंगे, रिटर्न कर देंगे आप सम को। रिटर्नेबल फंक्शन है इसलिए आपको रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो ये डिस्प्ले कराना पड़ेगा। ओके यहाँ पे आइए, कर्ली ब्रेसेस लगाइए, कंट्रोल S कीजिए, कंट्रोल F9। ओ माय गॉड 2 एरर दिखा रहा है। गेट सी शुड हैव ए प्रोटोटाइप। देखते हैं हमने क्या गलती करी है, प्रोटोटाइप नहीं है, गेट सी एच का ऐसा बोल रहा है। चेक करते हैं कि मैंने फाइल यहाँ पे इंक्लूड की है कि नहीं। यहाँ पे हमने फाइल इंक्लूड करना मिस कर दिया है, तो यू हैव टू राइट योर फाइल हियर conio.h। ओके नाउ अगेन कंट्रोल F9, आपका सम प्रिंट हो गया है 152.40। आप सारे एलिमेंट जो आपने लिखे उनका सम मैंने यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर दीजिए। तो दिस इज द वे यू कैन पास एरे टू द फंक्शन। So to pass an entry array to a function, only the name of the array is passed as an argument. This you have to be remember. So okay, so this is the way. तो ऐसे ही आप मल्टी डायमेंशनल एरे को भी कैसे पास करा सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक ब्रैकेट आया है, यहाँ पे आप 2 ब्रैकेट लिख लीजिए, 2 ब्रैकेट लिखेंगे तो वो 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगा। तो ऐसे मल्टी डायमेंशनल के लिए यहाँ पे यहाँ पे नेस्टेड लूप लग जाएगा, बिकॉज आपके रो कॉलम हो जाएंगे, एंड देन आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ये आपके घर के लिए काम है। तो टू पास मल्टी डायमेंशनल एरे टू अ फंक्शन, आपको ओनली द नेम ऑफ द एरे यू हैव टू पास। ओके सो दिस इज जस्ट अबाउट दैट एरेज फंक्शन, अभी आप इसे बोल सकते हैं, एंड हाउ टू पास एरे इन अ फंक्शन। सो दिस इज द 2 वेज आई हैव टोल्ड यू। आई होप आपको ये क्लियर है और आपको समझ में आया है। इफ नहीं तो आप प्लीज मैसेज कमेंट में कीजिए, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट। ओके सो वी विल बी मूविंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, सो दैट इज पॉइंटर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटर्स, हम इस पे अभी नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
So basically pointer are powerful feature of C and C++ programming. देखो जावा में पॉइंटर नहीं होते हैं, वहाँ पे एड्रेस का कोई इशू नहीं रहता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ बाद में जब हम जावा पढ़ेंगे. बट हियर इन सी लैंग्वेज पॉइंटर्स जो होते हैं ना वो सी का एक स्ट्रॉन्ग फीचर्स होते हैं, मतलब पावरफुल कॉन्सेप्ट जो पॉइंटर का ही यहाँ पे रहता है. सी प्रोग्रामिंग में आप कुछ भी डेवलप करते हैं, कोई एम्बेडेड सिस्टम की कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, तो आपका मेन जो होता है पॉइंटर्स होता है. पॉइंटर बहुत डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बहुत ईजी होते हैं अंडरस्टैंड करने में. तो हम उस पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पॉइंटर. सो अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, बाहर आ जाएंगे इससे. हम थोड़ा सा नोट्स लिखेंगे नोटपैड में. ओके यहाँ पे नोटपैड हमने ओपन किया है और एक नया फाइल हम फिर से ओपन करते हैं यहाँ पे. तो बेसिकली पॉइंटर्स आर पावरफुल फीचर्स ऑफ C and C++ programming, but before learning that we have to know about the few things. ओके मैं जब भी आपको कोई प्रोग्राम लिखवाती हूँ, मतलब स्कैनअप कराती हूँ, तो वहाँ पे एक M% का साइन आप लोग यूज करते हैं. और मैंने आपको कई बार बीच बीच में ये बताया है कि ये एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, काइंड ऑफ समथिंग. मैंने कुछ आपको बोला है हर एक प्रोग्राम के बीच में, व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट. सो ये चीज का रीजन क्या है, अभी वो टाइम आ गया है आपको एक्सप्लेन करने का. ओके सो एड्रेस इन सी, सबसे पहले हम पॉइंटर को सीखने से पहले हम एड्रेसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो इफ यू हैव ए वेरिएबल A, suppose in your program, suppose if you are having a variable A, कौन सा वेरिएबल है आपका A, तो जब आप इस प्रोग्राम को आप स्कैन कराते हैं तो क्या यूज करते हैं, M%A. ओके सो दैट 1% A will give you its address in the memory, मतलब जो ये एड्रेस किस मेमोरी में किस चीज पे ये लोकेटेड है वो रिप्रेजेंट करते हैं इसका एड्रेस. सो वी हैव यूज एड्रेसेस न्यूमरस टाइम व्हाइल यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन. आपको पता है कि हमने बहुत सारी बार इसका यूज किया है. जब भी हम स्कैनफ फंक्शन लिखते हैं तो हम इसको हमेशा यूज करते हैं. जैसे आपने स्कैनफ फंक्शन लिखा, आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे ये आप यूज करेंगे परसेंटेज M%A. स्कैनफ के टाइम पे आप जो वैल्यू दे रहे हो, सपोज आपने दिया 20, तो ये जो वैल्यू है आपकी 20, ये आपकी मेमोरी में किस एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रही है, किस एड्रेस पे ये वैल्यू जाके एलोकेटेड हो रही है, लोकेटेड हो रही है, वो आपका ई एड्रेस साइन बताता है. तो हमने इसको बहुत टाइम से यूज किया, मैंने आपको कई बार बोला भी है बीच में, तो वही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जो एड्रेस है आपका, इसको हम एड्रेस बोलते हैं. ठीक है, तो द वैल्यू एंटर्ड बाय यूजर इज स्टोर्ड इन द एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल, जो आपने यूज किया. अभी वेरिएबल का नेम क्या है आपने ए, तो हम ए बोलेंगे अभी. सो द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर इज स्टोर्ड इन द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल. सो अभी हम इसका एग्जांपल आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पे, जैसे मैंने स्कैनअप परसेंटेज, तो जो ये ए है आपका वो वहां पे प्रिंट हो गया. अभी मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ कि मैं आपको जो वेरिएबल है वो मेमोरी एड्रेस पे जाके कौन से एड्रेस पे जाके प्रिंट हो रहा है वो पता कैसे चलेगा आपको. अगर आपको जानना है कि मेरा जो वेरिएबल है वो किस एड्रेस पे जाके प्रिंट हो रहा है, मुझे सपोज ये जानना है, तो अभी हम वो वाला एक एग्जांपल करने वाले हैं यहाँ पे. पॉइंटर्स में 1 लिख देती हूँ, पॉइंटर का पहला एग्जांपल है. तो आपको ये चीज पता चलेगी. अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रही हूँ जिसमें आपको इस चीज का पता चलेगा कि जो आपका वेरिएबल है, मैंने उसका कोई वैल्यू लिया है, लेकिन मेमोरी में वो वैल्यू किस एड्रेस पे जाके स्टोर हुई है, तो वो आपको डिस्प्ले कराना है. तो अभी हम सेम चीज वही करने वाले हैं जो अभी हम करते हैं यहाँ पे. सॉरी एडिट खुल गया. तो यहाँ पे आप इंक्लूड करेंगे. इंक्लूड करने के बाद में यहाँ पे आप std.h लिखना पड़ेगा आपको. ठीक है, ये दोनों फाइल हम लगा देते हैं क्योंकि मैं हमेशा ये गेट cs यूज करते हैं इसमें. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वॉइड मेन इंटीजर मेन जो भी आपको लेना है वॉइड मेन ले लेते हैं. रिटर्न छोटा सा ही प्रोग्राम है, फिर उसके बाद हम मेन कॉन्सेप्ट मूव करते हैं. मैंने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे इंटीजर a और मैंने सपोज इसका वैल्यू लिया 5. ओके, और मैंने अभी प्रिंट एफ कराया. प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे लिखा ए वैल्यू, सपोज ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ए वैल्यू इज %d बैकस्लैश आपको देने हैं दे दीजिए, और मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया. तो जो भी ए की डबल क्लोज लगाना भूल गए, ए को मैंने प्रिंट करा दिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी. ठीक है ना. अभी मैंने क्या करा, दोबारा से एक प्रिंट एफ लाइन लिखा. अभी आप ध्यान देना, ये जो मेरा जो वैल्यू है ए, अभी स्कैन भी नहीं करा रही मैं अभी, लेकिन देखना प्रिंट करने का. तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, एड्रेस पता करना है कि जो ए वेरिएबल है ये किस एड्रेस पे जाके स्टोर हो गया है मेरा. ठीक है, एड्रेस ऑफ ए वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा,
और आपको पता है कि वो क्या करना पड़ेगा, जब आप पॉइंटर की बात करते हैं ना, आप एड्रेस निकालते हैं तो वहां पे आप क्या यूज करते हैं, परसेंटेज पी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, परसेंटेज पी, दैट इज पी फॉर एड्रेस, मतलब यहाँ पे पॉइंटर बोलते हैं, लेकिन ये पी रिप्रेजेंट करता है पॉइंटर को। अभी आप इसे इस तरह समझिए कि ये एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको एड्रेस निकालना है, उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, पी, वो आपके एड्रेस को निकालने के लिए। यहाँ पे आप गेट सी एस लिख दीजिए, और यहाँ पे आप सी एल आर एस सी जो भी आप हमेशा लिखते हैं, और रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज मेरा वर्ड फंक्शन है। कंट्रोल F9 किया आपने, तो आपको पता है ए की जो मेरी वैल्यू है कितनी है, 5, लेकिन एड्रेस क्या है मेरा इस वैल्यू का, FF4, तो ये मेरा इस वैल्यू का एड्रेस है। आपने क्या लिखा, पॉइंटर पी लिखा था वहां पे, राइट, तो मतलब ये परसेंटेज पी लिखा, यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे तो वो आपकी वैल्यू प्रिंट कराएगा जो कि उसने पहले प्रिंट कराई है 5, तो 5। सो नोट, यू विल बी प्रोबेबली गेट ए डिफरेंट एड्रेस व्हेन यू रन द कोड अगेन। अभी FF4 दूसरी मशीन पे दोबारा थोड़ी देर बाद रन करा के देखेंगे कहीं दूसरी विंडो पे डिफरेंट आ जाएगा, तो कुछ भी आ सकते हैं, मतलब वो रेंडम हो सकते हैं, लेकिन ये अभी मेरा इस पे स्टोर हो गया है, ठीक है। तो अभी मतलब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक हम पॉइंटर पढ़ना है। पॉइंटर में एड्रेस का बहुत बड़ा खेल रहता है, तो उसी के लिए मैंने आपको ये प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है। तो अभी हम बात करते हैं, वापस से आ जाते हैं अपनी नोटपैड पे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आपको थ्योरेटिकल। सो पॉइंटर क्या होता है बेसिकली, तो पॉइंटर्स वेरिएबल, और जो ये पॉइंटर आप लिख सकते हैं, या स्पेशल वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेस रादर देन वैल्यू। तो जो पॉइंटर्स होते हैं वो आपकी वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करने के लिए बेसिकली यूज होते हैं। तो यहाँ पे हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स में आप इस तरह से डेफिनेशन लिखिए, पॉइंटर्स, या फिर ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब मर्जी है आपकी। पॉइंटर वेरिएबल आर स्पेशल वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेसेस रादर देन वैल्यूज। तो ये आपका जो है एड्रेस के स्टोर करने के लिए यूज होते हैं रादर देन वैल्यूज, ठीक है। अब इसका सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स क्या कहता है आपको पता है, गुड। जो नए हैं उनके लिए है, आप यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, स्टार का, तो ये पॉइंटर होता है। सो दिस इज द वे यू डिक्लेयर द पॉइंटर। वी हैव डिक्लेयर अ पॉइंटर p ऑफ इंटीजर टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपको याद रहेगा। Here we have declared a pointer of int p, no, int type p, or pointer p, variable name pointer p of integer type, ऐसे लिखिए। तो बहुत सारे वेज होते हैं, आप ये वाला तरीका भी लिख सकते हैं, या फिर अपने पॉइंटर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और लिख देते हैं यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होंगे, इंटीजर स्पेस पॉइंटर p2 लिख देते हैं। चलो ये इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, p लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं लेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक द एग्जांपल। और डिक्लेरेशन आप दोनों, और ये भी, चलो ये भी लिख देते हैं। अगर आपको दो डिक्लेयर करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हो, इंटीजर, इंट के साथ में स्टार लगा दिया आपने, p1, p2। दिस इज ऑल्सो द वे यू कैन डिसाइड, यू कैन डिक्लेयर। और असाइन कैसे करते हैं आप, असाइनमेंट एड्रेस टू पॉइंटर, पॉइंटर को आप कैसे असाइन करते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ आपको, वो भी आपको यहाँ पे, असाइनिंग एड्रेसेस टू पॉइंटर्स कैसे करेंगे। इंट लिया आपने, स्टार लिया, मैंने एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे मैंने इसके एड्रेस के लिए सी वेरिएबल लिया। सी इज इक्वल्स टू, मैंने 5 वैल्यू लिया, और मेरा जो पीसी वेरिएबल है उसमें मैंने किसको प्रिंट करा दिया, स्टार को, एड्रेस को। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है, मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया सी, उसकी वैल्यू मैंने 5 किया, और दूसरे वेरिएबल में उसके एड्रेस को मैंने प्रिंट करा, तो एड्रेस ऑफ सी। तो मतलब पीसी के अंदर क्या प्रिंट हो गया, अभी जो भी आपने यहाँ पे 5 का जो वैल्यू है उसका एड्रेस मेरा पीसी वेरिएबल के अंदर आ गया, आप उसको प्रिंट करा दीजिए। तो इन दिस एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज 5 is assigned to the C variable and address of C is assigned to the PC variable। तो ये 5 जो है वो C में असाइन हो गया, और C का जो एड्रेस है, एड्रेस का साइन लगाया आपने, वो PC के अंदर आ गया। ओके, सो दिस इज द वे। आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा। और अगर आपको उल्टा करना है, गेट वैल्यू ऑफ थिंग्स पॉइंटर बाय पॉइंटर्स, पॉइंटेड बाय पॉइंटर्स, तो आप वो भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगर आपको क्या करना है, वैल्यू को गेट करना है, यहाँ पे इसको नोट कर देती हूँ मैं, पहले नोट्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। गेट वैल्यू ऑफ, मतलब ये जो एड्रेस है ये किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है बेसिकली,
इसमें मुझे ये बताना है आपको। तो बहुत सिंपल है, आप उस पे इंटीजर पीसी ये से तो दोनों वेरिएबल का नाम सेम ही ले लेते हैं हम। इस थोड़ा जब आप करेंगे ना रन इसको, थोड़ा पता चलेगा स्पेस का प्रॉब्लम है किसका प्रॉब्लम है उस चीज में। तो मेरा वैल्यू कितना है सी का 5 है, पीसी का मेरा कितना आ गया यहाँ पे, एड्रेस ऑफ सी आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको प्रिंट कैसे कराएंगे आप, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, मैंने वो भी एग्जाम्पल ही बताया ना। अगर आपको एड्रेस प्रिंट कराना है तो परसेंटेज पी लिखेंगे, और अगर वैल्यू प्रिंट कराना है तो क्या लिख देंगे, स्टार पीसी। मतलब ये मेरा पीसी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा 5। और अगर आप इसे लिखेंगे परसेंटेज परसेंट सी परसेंट ये लिखेंगे आप पीसी, तो उसमें ये मुझे क्या दे देगा, उसका एड्रेस प्रिंट कर देगा, जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जांपल में किया है। ठीक है ना, तो ये मेरा मतलब है। तो वैल्यू को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ओके कूल। तो अभी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उसमें आपको बताते हैं कि वो ये पॉइंटर्स कैसे हैं, वो कैसे काम करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। प्रैक्टिकल से आपको समझ में आ जाएगा, और भी अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया। ओके नोट ओपन, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ न्यू सोर्स फाइल। हैश include वही सीन चीज हम यहाँ पर ले लेते हैं, इंटीजर स्टार पीसी कोमा सी, ये वेरिएबल मैंने वहाँ पे लिए थे, ये हम ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू साइन कर देते हैं, मैंने 22 कर दिया, और अभी इन्हीं को हम अदल बदल के प्रिंट कराते रहेंगे। ओके उसी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं मुझे क्या करना है, एड्रेस ऑफ सी प्रिंट कराना है। अब आपको पता है एड्रेस मुझे ऑफ सी प्रिंट कराना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, करेक्ट पॉइंट यहाँ पे एड्रेस में पी एंड देन बैकस्लैश एन। अगर आपको देना है तो अच्छा है, नहीं देने वाले हैं तो देखो थोड़ा लुक अच्छा नहीं आता है कंसोल विंडो पे, बस इतना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे प्रिंट एफ मैंने लिखा है, और अब की बार मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मैंने कहा वैल्यू ऑफ सी। कैसे प्रिंट करेंगे वैल्यू ऑफ सी, परसेंटेज डी बैकस्लैश एन बैकस्लैश एन। देखो अब प्रिंट करने का जिस तरीका है आप कैसे भी यूज कर लीजिए, वो थोड़ा सा स्पेस देके प्रिंट करेगा। अभी मैंने क्या करा, पीसी इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ सी कर दिया, मतलब मेरा पीसी के अंदर क्या आ गया, एड्रेस आ गया किसका, जो मेरी वैल्यू सी पे स्टोर है, तभी उसको प्रिंट कराते हैं हम। सेम अभी हम दूसरा वाला प्रिंट करते हैं, वैल्यू प्रिंट कराते हैं इस बार। मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, अभी चेंज करके प्रिंट करा के देखते हैं। तो इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके तो मुझे दूसरा एग्जांपल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिंट है, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ पॉइंटर्स, क्या है आपका पीसी का, परसेंटेज डी यूज करने वाले हैं, बैकस्लैशन जस्ट टू गेट द स्पेस, 2 लाइन का नंबर का स्पेस इसके बाद में आ जाएगा प्रिंट होने के बाद में, इसलिए मैंने 2 लाइन दिया है, नहीं तो फिर 1 लाइन के जस्ट नीचे ही आ जाएगा इसलिए। ओके अभी मैंने पॉइंटर पीसी में वैल्यू सेंड कर दिया है 2 और इसको डिस्प्ले कराना है। सॉरी
ओके, यहाँ पे गेट सीस लिखेंगे। कंप्लीट, इस एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, रिटर्न इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न आ जाएगा रिटर्न 0, कंट्रोल एस कंट्रोल F9। ओके, सो यू कैन सी दिस इज द एड्रेस ऑफ सी, जो भी वैल्यू अपने वहाँ पे सी का साइन किया स्टार्टिंग में, एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 22। एड्रेस ऑफ पॉइंटर मेरा ये आ गया, वैल्यू ऑफ पॉइंटर की मेरे ये प्रिंट हो गया, एड्रेस ऑफ पॉइंटर ये, मैंने वैल्यू चेंज करा तो ये प्रिंट हो गया है, और इसका एड्रेस मेरा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मेरे वैल्यू चेंज हो गया है। द वैल्यू ऑफ सी इज 2, तो ये 2 का पॉइंट एड्रेस है। तो मतलब एड्रेस तो डिफरेंट हो सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, दैट विल बी द रैंडम वन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहते हैं तो यू कैन मेंशन इन अ कमेंट, एंड आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क, you can write in a text message, and please, if you like the way I'm teaching you, kindly subscribe my channel and share with your friends as well. In the next session I will cover about the pointers and array together. Okay, so thank you so much for watching. Please subscribe the channel. We'll meet in the next session.